of State for Ayush, Government of India, our eminent guest of honor, Shri Pramod Pathak ji, Honorable Special Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, and equally respectful Vaidya Jayant Dev Pujari sir, Honorable Chairperson, NCISM, our other senior executive committee members, Professor Yogesh Chandra Mishra sir, Dr. Govind Shukla sir, Professor Mahesh Vyas sir, Vaidya K.K. Dwivedi sir, and all other members of Vishwa Ayurveda Parishad, our valued listeners who have joined with us in today's event, I take this pride privilege to welcome you all in today's national webinar organized by Vishwa Ayurveda Parishad. It is indeed a very big day for each one of us, as many eminent stalwarts of Ayurveda from almost every corner of the country has today graced this event with their pride presence. So with this cheerful beginning, let's just begin this program by first of all seeking the blessings of Lord Dhanvantri. I request you all to join along with me in Dhanvantri Vandana. Dr. Anusuya, you may start Dhanvantri Vandana. Om Namami Dhanvantrim Adidevam Sura Suray Vandita Pada Padmam Loke Jararu Bhayamrityunasham Dataramisham Vividoshadina Dhanvantari Ramanatham Sarvaroga Nivarakam Ayurvedo Pravaktaram Vande Piyushadayakam Sarve Jana Sukhino Bhavantu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashit Dukha Bhag Bhavet Om Shanti Shanti Shanti. Thank you all, and thank you, Dr. Anusuya and team. Now, after this Vandana, may I please request Dr. Ramtiraj Sharma sir for Charakashtakam. Om Namo Sheshavatārāya Charakāya. Om Namo Sheshavatārāya Charakāya. Brahmadakshashvadevesha Bharadvaja Punarvasu Hutashavesha Charaka Prabhritibhyo Namo Namaha. Patanjala Mahavashya Charaka Pratisanskritai Manovakaya Doshanam Hartre Hipataye Namah. Anantam Rogahantaram Aptashreshtham Mahavedyam Aptashreshtham Mahavedyam Jagati Raksha Karanam Anantam Rogahantaram Shri Charakaya Pranamamyaham. Om Namo Sheshavatārāya Charakāya. Om Namo Sheshavatārāya Charakāya. भगवान चरक की जय, महर्षि चरक की जय. Thank you so much, sir. Now, to greet the distinguished personalities and to express our sincere gratitude for their prideful presence, I humbly request Professor Govind Sai Shukla sir, President Vishwa Ayurveda Parishad, for the welcome address. यत् प्रभा पटलोत भाषे भाषते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योतिः शाश्वतम न प्रकाशिता.
आज हमारे राष्ट्र भारतवर्ष की एक स्वास्थ्य को लेकर के जो वैज्ञानिक चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन के महर्षि आचार्य चरक की जयंती के इस शुभ अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय आयुष राज्य मंत्री मुंजबराम हैदर भाई जी का मैं आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार की ओर से आपका हृदय से हार्दिक हम अभिनंदन करते हैं। एनसीआईएसएम के माननीय सभापति वैद्य जयंत देव पुजारी जी, जिनके कार्यक्रम में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च वर्क, इसको विकेंद्रित करते हुए पूरी तरह से उस पर ध्यान रखते हुए संपूर्ण देश के अंदर एक शिक्षा का वातावरण जो तैयार होता है, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय जयंत देव पुजारी जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रशासनिक स्तर पर पिछले वर्षों में हमारे पूरे देश भर के अंदर जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रोन्नति का एक अनुभव व्यक्ति से किया गया, संपूर्ण विद्यार्थियों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षकों का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सकों का क्षेत्र हो, ओवरऑल पूरे देश भर में एक वातावरण बना है। ऐसे जिनका की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है, हमारे एक्स स्पेशल सेक्रेटरी श्रीमान प्रमोद जी नायक का मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिजीत जी जोशी साहब का विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित रूप से आपका एक मार्गदर्शन पाथे सभी का, हमें परिषद को संगठनात्मक दृष्टिकोण से किस प्रकार से, किस दिशा में और कैसे कार्य करने की ओर हमें बढ़ना चाहिए, उसके लिए आज का ये पाथे संपूर्ण देश से जुड़े हमारे सभी पदाधिकारियों के माध्यम से आगे बढ़ने वाला है। इस अवसर पर मैं सभी अपने प्रदेश के जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद अनुरागी बंधु इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, साथ ही विश्व आयुर्वेद परिषद की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसके सभी सम्माननीय पदाधिकारियों का भी इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नमस्कार। Thank you so much, sir. Now to give a brief introduction of Vishwa Ayurveda Parishad and acquaint us all regarding the true essence of today's event, I invite respected Yogesh Chandra Mishra sir, Organizing Secretary, Vishwa Ayurveda Parishad. धन्यवाद डॉक्टर निकिता जी। आज के इस चरक जयंती कार्यक्रम में उपस्थित तथा अन्य साधनों से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जिनकी आयुर्वेद के विकास के लिए श्रेष्ठ नीतियों के कारण देश तथा विदेश में भी आयुर्वेद निरंतर उन्नति की ओर सोपानों पर चढ़ता जा रहा है, ऐसे भारत के सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री महेंद्र भाई, जिनके मार्गदर्शन में आयुर्वेद की जो विभिन्न प्रकार की नीतियां थी, त्वरित गति से जिनका क्रियान्वयन हो सका, ऐसे प्रशासन कुशल अपने यक्ष सचिव माननीय प्रमोद जी, आयुर्वेद प्रशिक्षण के सभी स्तंभों अर्थात शिक्षक, शिक्षण संस्थान, शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षार्थी, शोध, सभी की सर्वांगीण उन्नति के लिए मनसा, वाचा और कर्मणा लगातार लगे रहने वाले अपने भारतीय चिकित्सा के आयोग के माननीय चेयरपर्सन वैद्य देव पुजारी जी, और जिनके अनुभव से अनेक शैक्षणिक संस्थानों ने अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। वर्तमान में आयुर्वेद से संबंधित विश्वविद्यालय, पंजाब के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मार्गदर्शन देने वाले अपने अभिजीत जी, हम सभी लोग आज आयुर्वेद के चिंतन के लिए यहाँ बैठे हैं। इस क्रम में विश्व आयुर्वेद परिषद एक संगठन है।
अब से 25 वर्ष पहले कुछ जिनके हृदय में आकांक्षा थी कि ये कैसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, विदेशों का भी भ्रमण करते समय उनको लगता था कि आखिर जो विदेश के लोग हैं वो भी वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और किसी ऐसी व्यवस्था जो सहज हो, इको फ्रेंडली हो, ऐसे किसी पद्धति की ओर सब लोगों की दृष्टि है। तो उन्होंने विचार किया कि भारत की जो प्राचीन शैली है ये आयुर्वेद, तो ऐसे कुछ एक मनीषियों ने और विश्व आयुर्वेद परिषद की स्थापना अब से 25 वर्ष पहले काशी में वर्ष प्रतिपदा के दिवस पर की थी। उसी के लिए 25 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी हम सब लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उनके माध्यम से कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कार्यक्रमों की रचना की विश्व आयुर्वेद परिषद ने, कुछ स्थायी कार्यक्रम प्रकार के हैं और उसमें वर्ष प्रतिपदा या हमारा जो वार्षिक हमारा जो स्थापना दिवस है वहां से प्रारंभ करके ये जो चरक जयंती है इसको भी तो सामान्य रूप से एक ही उत्सव देश में प्रचलित रह गया था, विदेश की पद्धतियों के प्रेशर में धन्वंतरी जयंती, उसको भी अब अपने आयुष के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मान्यता देकर के बड़े शौक से धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। तो ऐसे में एक चरक जयंती, धन्वंतरी जयंती, वर्ष प्रतिपदा या हमारा स्थापना दिवस, और हम केवल संकुचित नहीं है करने के लिए एक विश्व मंगल दिवस, ये जो मकर संक्रांति का क्रांति का पर्व होता है, परिवर्तन का पर्व होता है, इसके अतिरिक्त भी अन्य कई पर्व जैसे मार्च में वुमेन्स डे या महिला दिवस, शिक्षक दिवस और ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ऐसे इन सब कार्यक्रमों को हमारी सभी इकाइयां के सभी सदस्य बड़ी चिंता से, तत्परता से, प्रेरणा से मनाते हैं और उसमें से क्या करणीय है उसको ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों ने जो किया के आयुर्वेद की चिंता करने के लिए विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण संस्थान के बनने क्षेत्र में काम करने वाले बंधु, सॉफ्टवेयर एकेडमिशियंस और शासन के लोग भी, ये उनका मत जैसा कि आज के मंच पर ही आप लोग देख रहे हैं। और अंत में जो हमारा सबसे आराध्य देवता है अर्थात रोगी या सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति, उस Sorry to interrupt you, sir, but might be there is some kind of glitch on your end. So you are requested to first switch off your video and then you can start to speak. So your voice is breaking and you are not audible to us. मैं ऑडिबल हूँ? Yes, sir, you are audible. Yes, sir, you are audible. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir, you are clearly audible to us. धन्यवाद। Our honorable सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय श्री मुंजापारा महेंद्र भाई जी, आदरणीय मंत्री आयुष मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आदरणीय श्री जयंत देव पुजारी जी, उपस्थित सभी महानुभावगण और वर्चुअली जितने लोग, सभी लोग जो जुड़े हैं इस पावन अवसर पर, सभी को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन।
सर्वप्रथम मैं सभी को चरक जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही श्रावण मास के सप्तम सोमवार की भी शुभकामनाएं देता हूं और आज नागपंचमी का दिवस है, उसका भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी पर्व आप सभी लोगों के, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सभी एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए एकत्र हुए हैं और चरक जयंती, जो कि एक आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार में काफी फलदायी होगी, काफी उपयोगी होगी, उस पर हम चिंतन करने के लिए एक नेशनल वेबिनार के माध्यम से इकट्ठा हुए होंगे। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि पिछले सप्ताह WHO ने भारत में प्रथम ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें आयुर्वेद के विषय में काफी विशद रूप से चर्चा हुई थी और आप सभी में से कई लोग उससे जुड़े हुए थे, वर्चुअली भी, फिजिकली भी, और आप सभी के योगदान से एक अभूतपूर्व ये सक्सेसफुल रहा। तो इसके सबके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में आयुर्वेद से संबंधित, साइंटिफिक एविडेंस जनरेशन से संबंधित और इसके पब्लिक हेल्थ डिलीवरी को और स्ट्रेंथन बनाने से संबंधित विषयों पर काफी चर्चा हुई, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी काफी महान लोग, काफी विद्वत गण इकट्ठा हुए थे और 2 दिन तक ये काफी उपयोगी उसमें चर्चा हुई आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर। सो उसके जो मिनट्स हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कुछ ही समय में हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो उसको हम लोग सबसे मंत्रालय जो है सबसे शेयर करेगी और आप लोगों के भी विचार लिया जाएगा किस तरीके से किस तरीके से आयुर्वेद के साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम अधिक प्रचार और प्रसारित करें और साथ ही साथ इसको पब्लिक डिलीवरी में, हेल्थ डिलीवरी मोड में हम किस तरह से ले जाएं, ताकि जो कोने में, दूर कोने में लोग बैठे हुए हैं, उसको आयुर्वेद के बारे में, चर्चा के बारे में, इसके बारे में इसका फल मिले। हमने कोविड में देखा था कि किस तरीके से सेवा भारती ने घर घर पर लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया। उस समय, जिस समय लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, सब जगह से लॉकडाउन लगा हुआ था, सेवा भारती के माननीय सदस्यों ने घर घर जाकर बिना अपनी परवाह किए घर घर जाकर लोगों को औषधियों का वितरण किया, जिससे लोग काफी लाभान्वित हुए। और इसमें हम लोगों ने सर्वे भी किया था, एक ऐप बेस्ड सर्वे किया था। उसमें यह पाया गया कि 90% लोगों ने, जिन्होंने इन दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया था, उनको कोविड हुआ या तो काफी माइल्ड हुआ या तो कोविड से बचे रहे। तो हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद और सेवा भारती के सदस्यों का हमारे साथ जुड़े, काफी क्रिटिकल मोमेंट पर हमसे जुड़े और काफी अच्छे से इन्होंने हमारा सहयोग किया, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में हमेशा ही इसमें लगे रहेंगे और साथ ही साथ मंत्रालय भी काफी इनिशिएटिव ले रहा है, जिससे आयुर्वेद के सभी लोगों को फायदा मिले। आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए, उसको साइंटिफिक एविडेंस को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्शियम बनाया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरीज साथ आएंगे और साथ ही साथ उनके साइंटिस्ट भी साथ आएंगे और आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर उस पर रिसर्च करेंगे। इट विल बी ए जॉइंट रिसर्च and it will be facilitated by all the ministries who have come together. इससे एक विश्व में आयुर्वेद के साइंटिफिक रिकॉग्निशन में हमको काफी हेल्प मिलेगा। हमारा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते भी हमने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें भी हमने कई कंट्री के साथ बायलैटरल मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग की, जिसमें से क्यूबा है, वेनेजुएला है, फिर मलेशिया है, नेपाल है, कई कंट्री के साथ हमने उसके साथ किया था और आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के पर विशद रूप में चर्चा हुई। साथ ही साथ मेरा सभी से ये निवेदन है कि इसके बारे में एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी हम लोगों ने बनाया है, जिस पर करीब 40,000 साइंटिफिक पब्लिकेशन अवेलेबल है। आप इसको जरूर अध्ययन करें, इसको देखें। इसमें डिजीज वाइज, स्ट्रीम वाइज सभी आयुष के विभिन्न विधाओं के बारे में रिसर्च पेपर्स हैं। उसमें रिसर्च जो पब्लिकेशन है वो पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं और इसको हम ऑलरेडी और भी बढ़ा रहे हैं। जो हमारे लेटेस्ट पब्लिकेशन हो रहे हैं उसको भी हम जोड़ते जा रहे हैं। जहां तक कॉमर्स का बात है, 2014 में टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉमर्स था वो $3 बिलियन था और पिछले 7 सालों में ये 18 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये दिखलाता है कि पिछले 6-7 साल में इसकी महत्ता और इसका प्रभाव काफी बढ़ गया है, जो 6 गुना इसका मार्केटिंग साइज हो गया है। $18 बिलियन है और हम कोशिश करेंगे कि 2025 तक इसके $25 बिलियन हो जाए। जिस तरीके से इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है और जो हम साथ ही साथ इसके क्वालिटी एक्सपेक्ट कर क्वालिटी और एफिकेसी पर भी हम काफी ध्यान दे रहे हैं। इसका फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी को हमने रीऑर्गेनाइज किया है, उसके द्वारा भी और फार्माकोविजिलेंस स्कीम के द्वारा भी हम इसके क्वालिटी पर और एफिकेसी पर न्यू मोनोग्राफ्स प्रिपरेशन पर हम काफी ध्यान दे रहे हैं। इसमें सभी में आप लोगों का सहयोग हमारा काफी अपेक्षित है। आप लोग अपने सजेशंस मंत्रालय में भेजिए, जो भी आपको उचित लगे। जो मंत्रालय हमेशा मिल के काम करने में विश्वास रखती है और माननीय मंत्री महोदय हम लोग को हमेशा मार्गदर्शन रहता है। माननीय मंत्री महोदय हमेशा हम लोग को गाइड करते रहते हैं किस तरीके से लोगों से जुड़ कर ये मंत्रालय काम करे, उसको सबसे सर्वोपरि रहती है। लोगों से जुड़ कर करती है, फिर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से भी हम लोग काम करते हैं और साथ ही साथ हम आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के रूप में बढ़ाने के लिए हम लोग सदैव लगे रहते हैं। इस सब प्रयत्नों में आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमेशा रहे। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं और आप सभी को चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जय आयुर्वेद, जय हिंद। Thank you so much, sir, for giving your precious time to this event and for addressing all of us. Your tremendous contribution and visionary ideas and suggestions have given new height and global recognition to Ayurveda. Under your able supervision and your extremely visionary ideas, we have already done and we have already come so far. And we are definitely looking forward to work even more harder in bringing new heights and position to Ayurveda under your able supervision. So once again, sir, we are very much thankful that you have praised this event with your prideful presence. Thank you so much, sir. It is again a great privilege and a great day for us that Honorable Minister Dr. Munjapara Mahendra Bhai ji has also joined with us, and for which I request Professor Mahesh Vyas sir, General Secretary, to please do this honor and to invite Honorable Minister sir, a personality, extremely dedicated, honest, visionary personality, to please address us all. माननीय मंत्री जी का इस चरक जयंती समारोह में विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय महेंद्र भाई कालू भाई मुंजपरा जी
जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और आप एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मैडम जो है वो आयुर्वेद से हैं। मैंने आपके घर में आयुर्वेद का पूरा इंटीग्रेशन है। और सर ने कई बार कहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में कार्यक्रम में सर ने स्वयं ने कहा है कि मेरे घर पे आयुर्वेद ही चलता है। और अभी 17 और 18 में अहमदाबाद में जब सर थे तो वहां पर भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जो एग्जीबिशन था उस पे सर ने जो भी मिलेट्स थे उनके विषय में काफी सर का जो है वो हम सब के प्रति आशीर्वादात्मक स्वरूप रहता है। और सर के बारे में अगर कहा जाए तो सुरेंद्र नगर क्षेत्र में आप मिनिस्टर के रूप में तो जाने जाते ही हैं, एक बहुत अच्छे चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। और आपने मात्र 2 रुपए की फीस लेकर के अभी तक इतने व्यक्तियों का इलाज किया है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस चरक जयंती समारोह में आपकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति और आपका आशीर्वचन निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाएगा। और सर, मिनिस्टर आप आयुष तो अभी कुछ समय से बने हैं, लेकिन अगर घर के रूप में देखें तो आपके पुत्र का नाम आयुष है, पुत्री का नाम आयुषी है, तो आपका पूरा परिवार आयुर्वेदमय है। और इस प्रकार से आपकी उपस्थिति और आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाएगा और उनको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसी के साथ में सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री जी को उद्बोधन हेतु। सबको नमस्कार, प्रणाम। आयुर्वेदा एट 2047 विश्व आयुर्वेदा परिषद के द्वारा नेशनल वेबिनार ऑन द ओकेजन ऑफ चरक जयंती 2023 के इस प्रसंग में हाजिर आदरणीय श्री प्रमोद कुमार पाठक जी, श्री जयदेव देव पुजारी जी, प्रोफेसर अभिजीत जोशी जी, प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी, प्रोफेसर महेश व्यास जी एवं यहाँ उपस्थित विश्व आयुर्वेदिक परिषद के सभी वैद्यगण आज के कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से जुड़े सभी आयुर्वेदिक के जुड़े हुए लोगों को मैं सबसे पहले सबको चरक जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मुझे ज्ञात है कि विश्व आयुर्वेद परिषद ने कोरोना काल में आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए आयुष 64 के वितरण में तथा विविध व्याख्यानों के द्वारा अपना योगदान दिया था। विश्व आयुर्वेदिक परिषद की टीम पूरे भारतवर्ष में विविध प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्य कर रही है। यह बहुत प्रसन्न की बात है कि विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी ने बताया था कि परिषद ने आयुर्वेदिक के सभी प्रमुख 14 विषयों की अलग अलग परिषद बनाई है, जो उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान का आयोजन करती है। यह बहुत ही प्रसन्न की बात है कि विश्व आयुर्वेदिक परिषद के सभी वैद्यगण को मैं आज हार्दिक बधाई देता हूं। आचार्य चरक के बारे में कहा जाता है कि पूरे देश में वो घूमते थे एवं चिकित्सा करते थे। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले ही गांधीनगर में WHO समिट किया गया, जिसमें 80 से ज्यादा देशों ने भाग लिया। इस समय आप सबके लिए पूरे विश्व के द्वार खुल रहे हैं। चरक जयंती के अवसर पर इससे और अधिक खुशी की बात नहीं हो सकती है कि आप सभी विश्व के कई देशों में जाकर चिकित्सा कर सकेंगे। आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आज आवश्यकता है कि नए अनुसंधानों की और आप सबको बताना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय का बजट कुछ 6 सालों में 6 गुना तक बढ़ा दिया गया, जो आप सभी को खूब अनुसंधान कीजिए। आयुष मंत्रालय हमेशा आप लोगों के साथ है। आयुष औषधियों का बाजार 3 बिलियन था, जो अभी 24 बिलियन तक बढ़ गया है। आयुर्वेद निरंतर पूरे विश्व में पहुंच रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुष मंत्रालय भारत सरकार प्रारंभ किया गया अखिल भारतीय अच्छा काम करे। वैसे ही विश्व भारत परिषद के सभी प्रदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से
जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मैं आप सभी को एक बार पुनः चरक जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir. Your presence has added much value in our today's event. And we are very much thankful that you have graced this event with your prideful presence and has given your precious time to this event. Your extreme support to our department has helped us to grow even more and more. And we are able to achieve what we desired and what we aspired for. A minister like you is a need of the time. And again, we are very grateful for your extreme support and for your high vision. Thank you once again, sir, for being the part of this event. Now moving ahead, I want to invite Dr. Ravi Rao, sir, to please do this honor and invite a personality, such a dignified personality who has given new heights to Ayurveda. His visionary ideas and extraordinary actions have totally reformed this entire constitution of Ayurveda and has built up new confidence and a very firm ground and condition for Ayurveda teaching and learning process. I request Dr. Ravi Rao, sir, to please and invite a very influential and a very visionary personality, Vaidya Jayant Dev Pujari, sir, Honorable Chairperson, NCISM. Thank you, Dr. Nikita. Rather, it is an immense pleasure on behalf of Vishwa Ayurveda Parishad to welcome one of the visionary, the leader of us as such, Vaidya Jayant Dev Pujari. Sir, I wholeheartedly welcome you, sir, on behalf of Vishwa Ayurveda Parishad for today's Charak Jayanti. And sir is a well-known personality among all Ayurveda as well as nationally as well as international. Sir is a very good successful clinical practitioner, and apart from that, sir has been the chairperson of the NCISM since its inception and has been leading all of the total team very successfully. And sir has taken many steps to bring out the reforms in teaching by training teachers of Ayurveda throughout our country. And also, sir is as the minister sir has said, sir has been the laying or the stressing on the field of research has been promoted by sir very not successfully. And sir has also brought many or the much needed change as such actually in the syllabus of the BMS, which was very much waited since very long, and has made it very practical as well as clinical oriented. And also sir has introduced electives and many other reforms in the syllabus. And apart from this, sir has laid the stress on the quality teaching, which is very much need of the hour, as well as sir has laid the focus on the researchers, which is very important to take the Ayurveda leaps and bounds. And apart from that, sir has, under the sir's guidance, the popularity, reach, and the acceptance of Ayurveda has been reaching the many other nations also, and other nations have also accepted Ayurveda, which is a very welcome change. And I'm very happy to and I wholeheartedly welcome the visionary leader, Vaidya Jayant Dev Pujari sir, for today's webinar. And we are all very eager to get enlightened by sir's words of wisdom. They welcome you, the Vaidya Jayant Pujari ji. We are all pleased to hear you. Now it's over to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Nikita. सभी को मेरा नमस्कार। सुनाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को चरक जयंती की शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित माननीय योगेंद्र जी, सुरेंद्र जी और अन्य सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता विश्व आयुर्वेद परिषद के, इन सबको मेरा विनम्र अभिवादन। आज हम जिस व्यक्ति की जयंती मनाने जा रहे हैं, उसके कंट्रीब्यूशन को हम यदि देखते हैं तो दो तीन चीजें हमारे ध्यान में आती है। मैं तो एक साधारण सा चिकित्सक हूँ, इसलिए चरक को रोज देखना पढ़ना मेरा काम ही रहता है। उसमें दो तीन चीजें मेरे जो ध्यान में है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इस व्यक्ति की जो कृति है, जिसे हम चरक संहिता नाम से जानते हैं, उसको चरकाचार्य ने खुद ने कभी चरक संहिता नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं इसका प्रतिसंस्करण करता हूँ। अब इसको चरक संहिता कब से और किसने कहना शुरू किया, इसके बारे में हमारे पास में कोई निश्चित जानकारी नहीं है।
लेकिन इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी और जिसका जो क्रेडिट है उसको देते गए। अग्निवैश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृत, और उसी को आगे दृढ़बल जी ने भी लिया और दृढ़बल संपूरिते कहकर ये एक बहुत बड़े विचार की नींव इस व्यक्ति ने रखी। ये जो संहिता है इसने हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मैं कहता हूं कि 2000 साल राज किया है। हमको यदि पब्लिक हेल्थ के बारे में यदि जानकारी चाहिए तो हमको चरक संहिता देखनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पब्लिक हेल्थ वाला मामला कहाँ से आया। आपने MS वलियतन जी का नाम सुना होगा। उनका एक इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद नाम की किताब छपी है। उसमें उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को विकसित कर उसमें चरक संहिता को फीड किया और उस समय अपने देश की जो पब्लिक हेल्थ की जो सिस्टम थी उसके बारे में एक एनालिसिस उस किताब में दिया है। अब मेरे जैसा जो चिकित्सक है वो चिकित्सा की दृष्टि से ये चरक को देखता है और रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे पास आने वाले रुग्णों को मैं किस तरह से देखूं, किस तरह से उनकी चिकित्सा करूं, किस तरह से एथिक्स का मैं पालन करूं। मैं हमेशा बताता हूं कि बहुत सुंदर एथिक्स के बारे में चरकाचार्य ने कहा है कि कैसा कहा है, बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है इतना ही कि पुत्रवत आचरित। तो हम जब पुत्रवत आचरित कहते हैं तो मैं हमेशा मेरे विद्यार्थी मित्रों को कहता हूं कि यदि आप पुत्र के समान अपने रुग्ण का आचरण करते, रुग्ण को देखते होगे तो फिर आप ये कमीशन कभी नहीं ले सकते। अपने बच्चे को किसी एक्सरे या किसी ECG या किसी ब्लड टेस्ट के लिए भेजने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैद्य, कोई भी चिकित्सक कभी भी कमीशन की बात सोच भी नहीं सकता। तो एक बहुत ऊंचे स्तर का एथिक्स का एक गाइडलाइन हमारे चरकाचार्य ने हमको दी है। जब मैं यहाँ पर CCIM और अभी NCISM में आया तो मैं चिकित्सा की दृष्टि से इस ग्रंथ को, इस कृति को देखता हूँ और आप उसको देखिए कि किस चीज के बाद किस चीज को पढ़ाना चाहिए। इसका जो सीक्वेंस है स्थानों के हिसाब से कि सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान, उसके बाद विमान स्थान, इसके बाद इस प्रकार का जो सीक्वेंस चरकाचार्य ने चलाया, जो कि हमारे शिक्षा पद्धति पर भी इस ग्रंथ का बहुत बड़ा असर रहा है। और इसको बदलने का पहला काम जो है वो वाग्भट ने 600 साल बाद किया और उन्होंने सूत्र स्थान के बाद शारीर स्थान पढ़ाना शुरू किया। तो ये जो 500-600 साल तक किसी चीज को मार्गदर्शक के रूप में रखना या माना जाना, ये बहुत आसान बात नहीं होती। इसलिए आज हम जब चरक जयंती मनाते हैं तब अन्य सभी जयंतियों के समान हम लोग जयंतियां मनाती इसलिए, जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उसके कार्य, उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसके बारे में हम लोग सभी लोग जानकारी ले, एक बार उसका पुनर्स्मरण करें, उनके गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करें। और आज हमारे साथ में बहुत ही एक मेधावी और अध्ययनशील वक्ता जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, जोशी जी के बारे में मैं आप लोगों को शायद उनके इंट्रोडक्शन में कहा जाएगा कि चरक ने बुखार उतारने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का प्रयोग बताया है और ये इसका एक्सपेरिमेंटल मॉडल डेवलप करके जोशी जी को उस पर PhD मिली, वो भी भारत से नहीं मिली, बाहर से मिली। तो जिसको हम दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कहना भी एक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि चरक का कंट्रीब्यूशन ये माना जाता है कि उन्होंने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा से युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा में पूरे चिकित्सा को ढाला। तो इस प्रकार के व्यक्ति ने भी जब विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख किया है उसके ऊपर प्रयोग करके उसको, उसकी पुनः स्थापना, उसको एविडेंस बेस्ड बनाने का जो काम है वो आज के वक्ता ने किया है। तो मैं इस सभी पूरे परिप्रेक्ष्य में यानी चरक जयंती, विश्व आयुर्वेद परिषद, उसके वक्ता और चरक का जो कंट्रीब्यूशन, इन सबको देखते हुए ये चरक जयंती बड़े
मैं उसको मानसिक रूप से धूमधाम से हम लोगों ने मनानी थी। भले ही हम वर्चुअली बैठे हैं सब लोग, वैसे सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठे ही हैं, स्थिरता है, फिर भी ये स्थिरता से जो जिस मानसिक धूमधाम के साथ में हम लोग इसको मनाने जा रहे हैं, उसको फिर से एक बार मैं विश्व आयुर्वेद परिषद का अभिनंदन करता हूँ और फिर से एक बार इस चरक जयंती की आप सब लोग सबको बधाई देते हुए मेरे शब्दों को, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंत जी आपका, कि आपने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकाला हमारे बीच में। और निश्चित रूप से आपका जो एक आह्वान है कि हमको सक्रिय रूप से चरक जयंती का आयोजन करना चाहिए और सेलिब्रेशंस के रूप में, तो मैं यहाँ ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि चूंकि देश भर के विभिन्न प्रांतों से केवल आभासीय रूप से ही जुड़ा जा सकता है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अन्यथा तो पूरे देश भर में विश्व आयुर्वेद परिषद चरक जी की जयंती के अवसर पर स्थानीय लेवल पर फिजिकल कार्यक्रम बहुत बड़ी संख्या में आयोजित किए जा रहे हैं और इसको हम पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आपके इन बातों को विस्तार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकिता जी। Thank you so much, sir. So after this extremely enlightening deliberation of Honorable Vaidya Jayandev Pujari, sir, I would like to request Dr. Sridhar Anni Shetty, sir, to please do the honor and invite our today's distinguished keynote speaker, Vaidya Vijit Joshi, sir, a very renowned physician, academician, clinician, and please, sir, come forward and do this honor. Thank you, Nikita ji. Thank you very much. It is my privilege to introduce most respected Professor Abhijit Hanuman Joshi, sir, who is having a responsibility now, administration responsibility as Vice Chancellor Desh Bhagat University, Punjab. To introduce, sir, I have gone through the internet and I tried to take up all things, sir. We know, sir, very well when sir was with Tilak Maharashtra Vidyapit, but I was looking at his work. So briefly, I want to introduce sir. Sir has done his BA/MS and MA Sanskrit from Shivaji University, Kolhapur, and sir has pursued his MD in Ayurveda from Pune Vidyapit and PhD from Tilak Maharashtra Vidyapit, Pune. And he has been awarded Doctor of Science and Doctor of Literature by Karnataka Sanskrit University, Bangalore, and Yoga Sanskrit University, Boston, USA, and Charishma University, British West Indies, and Lincoln University, Malaysia. And sir has received his postdoctoral diploma from Harvard University, Boston, USA. Sir has learned Rigveda Samhita, I think, and Brahma Sutra Shankara Bhashya from eminent gurus and scholar, which is a Guru Mukhata learning, which is the one of the important thing to learn Vedas and even Ayurveda, we feel. And Professor Abhijit Joshi, sir, has more than 2 decades of professional and administrative experience, including teaching of UG, and he was a PG guide and a PhD guide, and he was very much into research. Earlier, as all of you know, that earlier sir has worked as a Dean Faculty of Ayurveda for Tilak Maharashtra Vidyapit, Pune, and it has always told to us during our post-graduation that sir was the backbone for this institution. He was instrumental for development of Department of Ayurveda in this university. Sir is also a member of NACPEER team since 2017. And he is associated with many government, non-government, and national and international bodies as an expert member on various committees. And sir is keenly interested in academics and has published extensively in national and international index peer-reviewed journals. And he has several books to his account and articles, public interviews, publications, conference proceedings, teaching, research programs to his credit. Professor Abhijit Joshi sir's commitment to the cause of preserving, translating, and popularizing timeless Indian Vedic knowledge, which is embedded in ancient Sanskrit text, has been duly recognized by several titles.
awards and honors that he has received over the last 2 decades. With this very short brief of respected Professor Abhijit Hanuman Joshi sir, I request him to guide us and enlighten us with his keynote speech on this occasion, which is Charaka Jayanti 2023. Thank you very much, sir. Welcome, sir. नमस्कार सबको प्रणाम एवं नमस्कार. I am audible? Yes, sir. Very much. I am audible. Yeah. सर्वप्रथम चरक जयंती के पावन अवसर पर मैं चरक जी को वंदन एवं प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को, मंत्री जी, माननीय पाठक जी, मेरे गुरु एवं आयुर्वेद के महान हस्ती देव पुजारी जी, महेश व्यास जी और सभी अन्य महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करते हुए मेरे विचार आपके सामने रखता हूं. मेरा ये सौभाग्य था कि जब मैंने पीजी एग्जाम के लिए पीजी एडमिशन लिया संहिता में, तब ये प्राविधान था सीसीआईएम द्वारा कि संहिता में जो पीजी करेंगे उनके लिए चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये 4 पेपर्स के लिए मीन्स पूरा 3 साल का अध्ययन इन्हीं ग्रंथों पे किया जाएगा. शायद आज ये प्राविधान नहीं है, लेकिन मेरा भाग्य ये था कि मैंने उस टाइम चरक संहिता का चयन किया और चरक संहिता के 4 पेपर का मैंने अध्ययन किया. चरक संहिता का जितना हो सके उतना अध्ययन किया. लेकिन आज ये बात बड़ी दिलचस्प है, अजीब है कि एक ग्रंथ उनके काल के बारे में ठीक है, मतमतांतर हो, कोई कहेगा 2000 साल पहले, कोई कहेगा इससे और पहले, कोई कहेगा और इसके बाद. लेकिन अभी देव पुजारी सर जी ने जैसे बात की कि अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूर्यते, तो ये कितने साल का है पता नहीं, लेकिन 2000 साल भी यदि हम मान ले तो 2000 साल और उसके आगे भी ये ग्रंथ के कारण जिन चरक जी की जयंती मनाई जा रही है, ये कितना बड़ा और महान होगा कि 2000 साल से ये पूरा का पूरा उनका ज्ञान और पूरा का पूरा उन्होंने जो लिखा हुआ है वो आज भी शाश्वत है. ये बड़ी उपलब्धि चरक संहिता की है, ऐसे मैं मानता हूं. दूसरी ये बात है कि हम जब विदेशों की बात करते हैं या भारत की भी बात करते हैं तो चरक संहिता में दिए गए हुए चिकित्सा सूत्र आज भी, जैसे कि प्रमेह के ऊपर चिकित्सा करते हुए, मैंने जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये बात कही गई थी कि जब हम चिकित्सा करते हैं डायबिटीज, वो डायबिटीज कहते हैं, तो डायबिटीज के ऊपर हम चिकित्सा करते हैं तो हम ये कभी भी सोचते हैं कि स्थूल प्रमेही, बलवान प्रमेही, कृश प्रमेही, दुर्बल प्रमेही, ये चारों का या इन सब का विचार करते हुए हमने कभी मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट की गई है. तो इसके लिए उनके पास कौन सा उत्तर है या आंसर है ये बात नहीं करता, लेकिन उस समय मीन्स 2000 साल पहले चरक जी ने ये कहा था कि इस प्रकार के प्रमेही होंगे और इनकी चिकित्सा अलग अलग रूप से की जाती है. ऐसा हर एक अध्याय में उन्होंने जो चिकित्सा सूत्र दिए हैं वो आज भी कितने अच्छी तरह से यूज हो रहे हैं, आज भी कितना हम उसे रिजल्ट दे रहे हैं. दूसरी बात, जो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा की ही की गई है, उसमें एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं. विदेशों में जब मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं कि विदेशों में या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे उनका 2019 का बेस्ट रिसर्च का अवार्ड दिया गया, लेकिन उनके पास इतनी बहुत बड़ी यंत्रणा है, उनके पास इतने बहुत अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज जो आपने बताई है वो आज तक हमारे यहाँ किसी ने भी कहीं भी नहीं कही, वो है पात्र प्रशस्ति. मीन्स घृत किस पात्र में रखना प्रशस्त है, घी मीन्स घी किस पात्र में रखना प्रशस्त है,
मक्खन किस पात्र में रखना प्रशस्त है, या फिर कोई भी हमारा जो फूड एलिमेंट है जिसे हम अन्न पदार्थ कहते हैं, वो किस पात्र में मीन्स किस कंटेनर में रखना प्रशस्त है, ये हमारे आयुर्वेद के सिवाय किसी दूसरे ग्रंथ ने कहा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है या एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है, तो ही दुनिया को पता होने की जरूरत थी। तो हमने एक काम किया कि द घी, काउज घी, which is made by Indian traditional method, that is the underlying statement, made by Indian traditional method, वो हमने 7 अलग अलग, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, इन वेरी ब्रीफ मैं कहता हूं, 7 अलग अलग कंटेनर में हमने रखे और उसका फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस प्री लिया, एंड आफ्टर 7 डेज 0 टेम्परेचर में रखने के बाद आफ्टर 7 डेज उसका एनालिसिस 7 कंटेनर में किया। तो पॉलिथीन बैग में रखा हुआ घी एंड प्लास्टिक बॉटल में रखा हुआ घी के ऊपर कोई अलग अलग दूसरे ही रिएक्शन होके वो खराब हो गया था। इसीलिए जो हमारे शास्त्र ने कहा है कि उसे इस बर्तन में, कोई भी चीज है उसे इस बर्तन में रखना है, उसे इस बर्तन में रखना है, तो ये सब चीजें उनके जब सामने आई तो उन्होंने कहा, मीन्स हार्वर्ड के इनोवेटिव एंड रिसर्च यूनिट के अध्यक्ष ने कहा कि ये सब चीजें हम आप ग्रंथ से भेज दीजिए, हम इसके ऊपर बड़े अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके हम उसे दुनिया के सामने लाएंगे। हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन ये जो ज्ञान है ये खाली इंडियन ग्रंथों में ही मिलेगा। इसीलिए ये चरक महान है, ये ग्रंथ हमारे महान है। दूसरी बात आती है, मैंने एक सोच लिया था कि चरक 3रे अध्याय चिकित्सा स्थान हम जब पढ़ते थे तब चरक जी ने, अभी जो देव पुजारी सर ने बात की कि विष्णु सहस्त्र नाम का ज्वर निवृत्ति में उपयोग कहा गया है, तो वेदर दैट इज मीन्स ये सही है या गलत है, या फिर उस जमाने में होता था, आज के जमाने में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह की बात थी। तो मैंने ही उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया और हमने आज के मीन्स बाय यूजिंग ऑल इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंटल टूल्स हमने एनिमल हाउस में 7 माउस, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ 7 माउस, एक को हमने जैसे कि इन्हें ज्वर लाया गया, मीन्स उन्हें ज्वर लाया गया, दोनों केज में रखे हुए माउस को ज्वर लाया गया, ज्वर निर्माण किया, उन्हें 100 डिग्री तक उन्हें ज्वर की निर्मित की बाय यूजिंग आर्टिफिशियल टूल्स, और बाद में 7 माउस को हमने वही केज में सुब्बा लक्ष्मी जी द्वारा जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो चैंटिंग शुरू कर दिया, और दूसरे केज वाले जो थे सेम ही थे, उन्हें पैरासिटामोल हमने इंजेक्टेबल दे दिया, एंड आफ्टर 3 आवर्स 6 आवर्स 8 आवर्स रेगुलर इंटरवल से हमने उनका जब ज्वर चेक किया तो इक्वली, और या फिर पैरासिटामोल से पहले जो हमने विष्णु सहस्त्रनाम जिन्हें सुनाया गया था उनका ज्वर कम आ गया, उनके ब्लड में कोई भी दूसरा पैरासिटामोल जैसा कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग नहीं मिला। ये विथ ऑल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है जो हमने अच्छे लैब में किए हैं। ये है चरक की उपलब्धि। तो चरक ने दिए हुए, आज के मिति में भी चरक ने जो दिए गए हैं जो प्रमाण है वो 2000 साल में भी थे, आज भी है, और इसका हम अच्छी तरह से प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन एक खाली खंत है, वो एज ए एकेडमिशियन करके आज यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ, तो इसलिए एक एकेडमिकली मुझे एक खंत है। लेकिन आज देव पुजारी जी सर अच्छी तरह से ये सब अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है और कॉलेजों में अच्छी स्थिति आ गई है। लेकिन उतनी एक खंत है, जैसे SAQ के अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन, उसमें मैंने एक 10 साल 5 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन देखा था, वो था चरक जो हमारा सूत्रस्थान का जो अपमार्ग तंडुली अध्याय है उसमें था शीरो विरेचनोपक द्रव्य, शीरो विरेचनोपक द्रव्य, ऐसा उन्हें क्वेश्चन आया था कि लिखिए आप शीरो, मार्क्स 2 थे। तो
जो उसका मॉडल आंसर तैयार किया गया था, उस मॉडल आंसर में लिखा हुआ था एनी 4 हाफ मार्क्स टू ईच, एनी 4 फुल मार्क्स। तो 4 आप लिखते हैं शिरो विरेचनोपग द्रव्य, तो आधा मार्क ईच के लिए आप आधा मार्क मिलेगा और 2 मार्क्स आपके लिए मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा मुझे ये रहता है कि शिरो विरेचनोपक द्रव्य है तो शिरो विरोचनोपक द्रव्य है। हर एक द्रव्य का जो कार्य पद्धति है, रसवीर्य विपाक या फिर जो भी चरक जी ने कहा है वो अलग किस्म का है। इसे आधा मार्क में कुछ बटोरना ठीक नहीं है। पढ़ाने के लिए वो ठीक है, मार्क्स देने के लिए वो ठीक है, लेकिन उस वमनोपक विरेचनोपक जो भी द्रव्य है उसके पीछे जहां जहां वो कहा गए है उसके पीछे जो उनकी जो सोच थी वो आज भी जो चिकित्सा करने वाले हैं उन चिकित्सा करने वालों को भी समझ में आती है और उसके ऊपर चिकित्सा की जाती है। बाद में हम इंद्रिय स्थान के ऊपर जाते हैं तो वहां के भी हमने रिजल्ट्स ले लिए हैं। ऐसे कई महानुभाव हमें मिले कि उन्होंने कहा जो आयुर्वेद से फिलहाल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कह डाली कि आपका ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसी चीजें घटती है, ऐसे ऐसे चीजें होती है, तो ये 6 महीने में उसका अंत हो जाएगा, इसका 2 महीने में अंत हो जाएगा, इसका 3 महीने में अंत हो जाएगा। तो हमने उन्हें आज बड़ी दिलचस्पी से पूछा कि ये कहाँ से आपने सीखा है, ये कहाँ से आप मिलता है? तो उन्होंने कहा ये सब कुछ आयुर्वेद में है। तो हमने फिर सोच लिया कि यही इंद्रिय स्थान है, यही इंद्रिय स्थान की दृष्टि है, यही इंद्रिय स्थान में आया हुआ है, लेकिन आज हम उसके ऊपर कोई अच्छी तरह से रिसर्च नहीं कर पाए। तो चरक में ऐसी चीजें हम कहते हैं कि आज ये कालातीत है या कालबाह्य है, जो भी कुछ है, लेकिन उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च की जाए, यूनिवर्सिटी की लेवल पे रिसर्च की जाती है या फिर चरक के चिकित्सा में हर एक पेशेंट के ऊपर दिए गए औषधियों के आने वाले रिजल्ट के ऊपर चिकित्सा जो की जाती है उसके ऊपर रिजल्ट आते हैं। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दुनिया के जो बड़े विश्वविद्यालय माने जाते हैं, भारत या भारत के बाहर के, उन्हें इन चीजों की जरूरत है। हमारे आयुर्वेद की जरूरत है, चिकित्सा के लिए जरूरत है, चिकित्सक के रूप में हमारी जरूरत है, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड चाहते हैं और चरक जैसा एविडेंस बेस्ड ग्रंथ आज तक कभी दुनिया में है ऐसा मैं मानता नहीं हूं। लेकिन इसलिए ये चरक जी महान है और इन पावन अवसर पर आज हम सब एक अच्छी तरह से संध्या संभाषा के लिए सभी महानुभाव एकत्रित हुए हैं। इसका बड़ा पावन अवसर कुछ भी नहीं होता। पुनश्च मैं चरक जी को शतशः धन्यवाद एवं नमन करते हुए मैं अब यहाँ ही विरामता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद। सर, अगर आपके पास समय की बाध्यता ना हो तो हम सब लोग जुड़े हुए और आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे। आपके अनुभव, चरक के एकदम नए अनुभव सब लोगों को लग रहे हैं, तो एक निवेदन है कि अगर समय बाध्यता आपके साथ ना हो तो और कुछ समय आप अपने विचार रखें तो हम अनुग्रहित। थोड़ा मुझे 12:30 कहीं जाना है, एक मीटिंग है, तो मैं एक स्पेशल रूप से वो जो एविडेंस है जो हमने चरक के ऊपर आज तक प्रयोग किए हैं, चरक के 10-15 एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या फिर यहाँ एनसीएल लैब में या नेशनल इंस्टीट्यूट में हमने जितने भी प्रयोग किए हैं वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके लिए 1 या 1.5 घंटा मुझे चाहिए और वो कहीं अनुमति मिलती है तो मैं जरूर ये काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके लिए हम एक्सक्लूसिवली आपका समय लेकर, और निश्चित रूप से सभी अनुग्रहित होंगे आपके इस अनुभव और नए प्रयोग से। धन्यवाद सर। निकिता जी। Thank you so much, sir, for extremely enriching deliberation, and I'm totally agree with Dr. Surendra Chaudhary, sir, that when we were listening about your deliberation, we were actually thinking about the new avenues that you have shared today, because we all know that Devya Pashtu Chikitsa is a very gray area and is a very less explored branch in Ayurveda. And we have got so many. One minute. Yes, sir. In दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के बारे में हम कहेंगे, मैंने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, मैंने शंकराचार्य जी के यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा होती है वो शिष्य परंपरा में मैंने ऋग्वेद संहिता का अध्ययन किया है। तो
जब मैं ऋग्वेद संहिता का अध्ययन करता था तो ये बात पहले ही खाली अध्ययन होता था। 12 साल 15 साल आयु में कुछ ये बातें समझ में कभी नहीं आई, खाली हमने उसका चांटिंग ही लिया। लेकिन जब हमें ये पता होने लगा कि ऋग्वेद संहिता में एक भी रेफरेंस युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा का नहीं है। ऋग्वेद संहिता में सभी रेफरेंस जो चिकित्सा के लिए सामने आए हैं वो सभी रेफरेंसेस दैव व्यापाश्रय या दैव व्यापाश्रय चिकित्सा भी उसे नहीं कहेंगे, इसे मंत्र चिकित्सा के रूप में कहेंगे। जैसे कि सौर सूक्त की उन्होंने प्रशस्ति कही है, सौर सूक्तों से हजारों व्याधियों का इलाज होता है ऐसा कहा है। तो हमने सौर के कहीं सूक्त मंत्र या सौर के कहीं सूक्त हमने लिए, उसके ऊपर भी हमने प्रयोग किए, डायबिटीज के लिए उसके प्रयोग किए, हाइपरटेंशन के लिए उसके प्रयोग किए और सभी चीजों के लिए उसके प्रयोग किए हैं। वैसे कि अथर्वण चिकित्सा, अथर्ववेद चिकित्सा में इतने हमारे जहाँ काल, ज्योतिष, ये सभी चीजें भी चिकित्सा के ऊपर कितनी मायने लगती है, इसका भी कलेक्शन हम अभी कर रहे हैं। ये सभी एक दिन हम अच्छी तरह से ये बात कहेंगे और हमारे पास विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड विद साइंटिफिक जो भी उसके रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। Thank you so much, sir. And we are definitely looking forward to witness that lecture, because we all know दैव व्यापाश्रय चिकित्सा has a lot to offer in the field of Ayurveda, but still very less has been done, or very less has been done. And we still have to go a lot way forward. We still have to go a lot in that case. Yeah, sure. So yes, sir, it's a very enriching deliberation, and the scholars do require the able mentorship of persons, of experienced persons like you. And thank you so much, sir, for sharing with us regarding your valuable experiences and instances. So once again, thank you so much, sir, for being the part of this event. And now Professor Yogesh Chandra Mishra, sir, has joined with us, और उनकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, तो I again request sir to please acquaint us all regarding the activities of Vishwa Ayurveda Parishad. धन्यवाद। कुछ नेटवर्क के क्या हुआ, आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी सर, यस सर। थैंक यू। कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण से बीच में व्यवधान आया था, लेकिन अब डॉक्टर अभिजीत जी को सुनने के बाद तो हम क्या कर रहे हैं ये विचार करना आवश्यक नहीं है। करेंगे या हमको क्या करना चाहिए ये हमको, माने संपूर्ण आयुर्वेद जगत को। कई बार एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग आप्तोपदेश को प्रमाण मान के चलते हैं, बाकी सब लोग अन्य जो मतावलंबी हैं, अन्य मतावलंबी माने जिसको चाहे विदेश कहिए, उनके यहाँ सत्य क्या है इसकी परिभाषा प्रयोगशाला में ही तय हो सकती है। हम लोगों की परिभाषा, हमारे जो ऋषि जो उदाहरण दिया ऋग्वेद का या अन्य स्थितियों का, तो सबसे पहले एक वाक्य आता है विश्वासः गुरु वाक्येषु। यहाँ से अध्ययन, अध्यापन, चिकित्सा जो भी प्रारंभ होती है, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम। ये ठीक है कि पूरे देश में, विश्व में भी कुछ स्थानों पर परिषद के कार्यकलाप चल रहे हैं। वर्तमान में प्रारंभ में मैंने चर्चा की थी, पता नहीं कहाँ से व्यवधान हुआ। हमने संपूर्ण, जैसे अष्टदल कमल होता है, आयुर्वेद के अष्टांग होते हैं, सब लोग जानते हैं, जरा व्याध, जरा ब्रश, काय कायक, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वरोग। ऐसे ही हमने प्रयास किया है कि विश्व आयुर्वेद परिषद को भी जो उसके कार्य क्षेत्र हैं उनको 8 भागों में विभाजित किया। विद्यार्थी,
शिक्षक, चिकित्सक, औषधि निर्माता एवं विक्रेता, शोधकर्ता, नीति निर्माता, एकेडमिशियंस, और उसमें भी जैसे औषधि के साथ आहार के अष्टविधि विशेषायतन बताए हैं, तो अंतिम जो बात बताई है प्रकृतिकरण के बाद अंत में उपयोगिता भी चाहिए। तो ऐसे जो उपयोगिता है, जो रोगी है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसके लिए आयुर्वेद प्रकाशित हुआ था, यानी प्रारंभ के जो पहले दूसरे तीसरे अध्याय, पहले प्रथम अध्याय के जो 10 श्लोक हम लोग देखेंगे, तो उसमें जो कहा गया है कि ये जो आयुर्वेद है या शिक्षा पद्धति है, जिसके लिए प्रकाशित हुई है, वो आत्मा या पुरुष, जो शब्द प्रयोग करिए, वो भी हमारा आराध्य देव है। और उसमें हमारी जो सीमाएं हैं, अनुभव, तो ऐसे जो विभिन्न कार्यक्रम है वो हम सब लोग कर रहे हैं। विद्यार्थियों को लिखने पढ़ने का अभ्यास बने, लिखने का अभ्यास धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की निबंध प्रतियोगिताएं यूजी स्तर पर, पीजी स्तर पर, फिर एमडी की थीसिस के स्तर पर, उनको भी प्रेरणा देने की दृष्टि से, उसके पीछे कोई पैसा नहीं है, सब थीसिस एक से एक अच्छी थीसिस होती है, लेकिन प्रेरणा देने की दृष्टि से उनमें कुछ ना कुछ डिमार्केशन करके, तो ऐसे कुछ कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक लक्ष्य की योजना बनाई। कोविड की चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। कोविड में ये सिखा दिया कि विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जिसने आयुर्वेद का उपयोग नहीं किया हो। सब लोगों को लग गया कि भाई अगर वो गर्म पानी पी रहा है, और आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा शास्त्र नहीं है, वो एक आवास, रहने की व्यवस्था है। क्या खाना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किस बर्तन में रखना, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। हमने एक एक चीज के बारे में बताया कि किस बर्तन में रखना ये अलग बात है, किस लकड़ी से ईंधन जलाया जाए उससे खाना पकाना, उसमें भी गुण के अंतर आते हैं। हमने वो जो एक चर्चा बताई, खरपर में बनेगा कि कुलूल में बनेगा, मैंने एक खाना बनाने की जो विभिन्न प्रक्रिया वर्तमान समय में उसको करेंगे, ये भी शायद शोध का विषय निकलना पड़ेगा कि एक ही प्रक्रिया को, एक ही वस्तु को अगर 4 प्रकार की आंच पे पकाएंगे, उपलों में पकाएंगे कि बेर की लकड़ी पे पकाएंगे, कि किसके साथ पकाने से वो हानिप्रद हो जाएगा, किसके पकाने से वो हो जाएगा, तो इन सब विषयों में आस्था जगाने का काम। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि वास्तव में आयुर्वेद का जो काम है, जिसको हम लोगों ने पकड़ा है, बहुत बड़े आयुर्वेद की कोई सीमा नहीं है, जो शासक भी है, और हमारे पास हमारे बड़े उसकी बात है कि 2000-3000 साल पहले भी जिस रूप में लोगों ने उसका साक्षात धर्माना थे वो ऋषि लोग, उसी शब्दों में उपलब्ध है। लेकिन वो शब्द को डिकोड करना, शब्द के बारे में चिंतन करना, ये हमारे परंपरा में से आएगा। और मुझको लगता है कि अभी डॉक्टर जोशी जी ने जो विषय रखा, उसमें से सब विद्यार्थी नई पीढ़ी के उसमें से निकलेंगे, और उसमें से कुछ भी अगर निकलते हैं तो ये विश्व आयुर्वेद परिषद का अपना योगदान समाज के लिए होगा, और हम विश्व आयुर्वेद परिषद अपने को धन्य मानेगा। इतनी बात पुनः कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और कार्यक्रम आगे अपनी परंपरा में बढ़े, इसके लिए पुनः धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now to show our sincere gratitude to all the distinguished personalities who have joined today, to our valued listeners and all the direct and the indirect hands who have lended their contribution to make this event successful, I request Vaidya Shivaditya Thakur, sir,
National Secretary Vishwa Ayurveda Parishad to propose vote of thanks. आप सभी को मेरा प्रणाम। आज श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे नागपंचमी कहते हैं, इसी दिन विशुद्ध नामक एक महान मानव के परिवार में, उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसे बाद में चरक के नाम से यह प्रतिष्ठा मिलती है। और वही चरक आयुर्वेद के अंतर्गत काय चिकित्सा क्षेत्र में या संपूर्ण चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। और वो इसलिए भी स्तुत्व है कि विविध प्रकार के वर्णनों के माध्यम से चिकित्सा की विधाओं को साक्ष्य स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आज कहते हैं कि विश्व के अंदर से अगर चिकित्सा की सारी ग्रंथें समाप्त हो जाएं, लेकिन केवल और केवल चरक संहिता बची रहे, तो हम उसके आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा की एक श्रेष्ठ अनुभव युक्त, ज्ञान युक्त अट्टालिका खड़ा कर सकते हैं। तो आज विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चरक जयंती का यह कार्यक्रम हम सब लोग ने आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण पर आयुष के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई उपस्थित हुए हैं। आपके बारे में तो जैसी की जानकारी मिली, आयुष और आयुषी के पिता होने के कारण आप अपने आप में एक पूर्ण आयुर्वेदज्ञ हैं। न्यून शुल्क लेकर और पीड़ित मानवता को आयुर्वेद की चिकित्सा आपने प्रदान किया है, यह स्तुत्य है। हमारा यह सौभाग्य है कि आप भारतीय संस्कृति के जिस मूल से आते हैं और उसी मूल को पुनरपि प्राप्त करने का हमारे संगठन का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में अपना सहयोग अत्यंत व्यस्तता के पश्चात भी हमें प्रदान किया है। इसलिए हम कृतकृत्य तो हैं ही, साथ ही आपके प्रति आभार भी है और आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। हमारे साथ एक कर्म पुरुष जो हमारे ही परिवार के हैं, वैद्य जयंत देवजी पुजारी, आप राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति के अध्यक्ष हैं। और आपको यदि हम कर्म पुरुष कहें आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार आपके कार्यावधि में आयुर्वेद की सूक्ष्म विचारों को लेते हुए और शैक्षणिक पद्धति से विकसित कर रहे हैं, उतना ही नहीं, संपूर्ण चरक संहिता को एक वेबसाइट में लाकर आपने गुम्फित किया है, जो संपूर्ण आयुर्वेद के शिक्षक, छात्र, चिकित्सक के लिए अत्युपयोगी है। इस प्रकार के आयुर्वेद विकास के कार्यक्रमों में आपके नित्य निरंतर समर्पित होने के कारण हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमान प्रमोद पाठक जी, जो आयुष के क्षेत्र में और संयुक्त सचिव के दायित्व इस नाते आयुर्वेद के संपूर्ण विकास में अपना योगदान दिया है, और आपके इस दायित्व पर रहते हुए हम सब लोगों ने आयुर्वेद के उत्थान के लिए आपके माध्यम से जो तकनीकी बातें या ज्ञानप्रद बातें आपके माध्यम से हुई है, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी
मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अभिजीत जी जोशी, कुलपति देशभक्त विश्वविद्यालय पंजाब, जिन्होंने, हम जब आयुर्वेद में चिकित्सा की चर्चा करते हैं तो ज्वर को एक कृच्छ साध्य ऐसा रोग की श्रेणी में रखते हैं, ताकि जिस वैद्य ने ज्वर की सफलतापूर्वक चिकित्सा की वो शेष सभी रोगों की चिकित्सा सुलभता पूर्वक कर सकता है। और ज्वर की चिकित्सा में औषधियों के अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का गायन रोगी को किस प्रकार दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के माध्यम से रोग विमुक्त करता है, यह हमारी जो सांस्कृतिक पद्धति है इसके अंतर्गत है और जिस पर आपने पीएचडी किया है। हम सब लोग आतुर थे कि आपसे और भी कुछ ज्ञानप्रद बातें ग्रहण कर सके, लेकिन संभवतः आपके पास समय की कमी होने के कारण तत्काल हम नहीं श्रवण कर पाए। पश्चात काल आपसे पुनः आग्रह करके आपसे समय लेकर एक बार आपका व्याख्यान हम सब लोग सुनेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारी केंद्रीय टोली, जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष वैद्य गोविंद शुक्ल सहाय, हमारे आदरणीय महासचिव वैद्य महेश व्यास जी, हमारे संगठन के श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें हम कहते हैं कि संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसे आदरणीय योगेश चंद्र मिश्र जी जो संगठन के संगठन सचिव हैं, हमारे सुरेंद्र जी चौधरी जो समस्त तकनीक कार्यक्रमों को संधारित करते हैं और यह जो कार्यक्रम है उनके द्वारा तकनीक रूप से नियोजित किया गया है। डॉक्टर श्रीधर एनी शेट्टी जो हमारे राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख हैं, डॉक्टर रवि राव जी जो अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, इन समस्त कार्यकर्ताओं के दिन रात एक करके परिश्रम करने से हमारा यह संगठन आज अपने जीवन के 25वें वर्ष में देश के 25 प्रांतों में सफलतापूर्वक चहुंदिशी अपने कार्य को विस्तारित करते हुए और आयुर्वेद के अतीत को पुनरपि प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। आज संपूर्ण देश से जितने कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में आभासी रूप से संयुक्त है, ऐसे हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ इन तमाम बंधुओं को, जिनके उपस्थित होने से हमारा यह कार्यक्रम सफलता की आयाम को प्राप्त कर रहा है, एक बार हार्दिक आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज धन्यवाद ज्ञापित तो कर रहे हैं, लेकिन मन पर एक बड़ा बोझ भी है, मन थोड़ा पीड़ाग्रस्त भी है, क्योंकि आयुर्वेद के दो नक्षत्र दोनों काशी से हैं। अगर डॉक्टर रामहर्ष सिंह का नाम लें तो उसमें काशी से चिकित्सा जगत में जो कोई प्रबुद्ध नाम हो सकता है वह रामहर्ष सिंह का पता है। उनका शरीर कल रात्रि देवलोक गमन कर गया। शरीर पंचतत्व में समाहित होकर और श्री विष्णु के चरणों के लिए प्रस्थान कर गया। प्रोफेसर जीपी दुबे वह भी हमारे मध्य नहीं रहे, तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि आत्मा तो अमर है और ऐसे कृत्य करने वाले महापुरुषों की आत्मा को साक्षात श्री हरि विष्णु अपने चरणों में स्वीकार करते हैं। लेकिन आज तो अभी शायद उनकी अंत्येष्टि पूर्ण हो रही होगी, तो हम सभी आयुर्वेदानुरागी
जो आयुर्वेद के एक एक कण को जोड़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, अपने इन दो महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक कार्यक्रम इसी संदर्भ में रख रहे हैं। हम सभी 2 मिनट अपने अपने स्थान पर मौन रहकर उन दो श्रेष्ठ ज्येष्ठ आत्मा के शांति एवं उस परिवार को भगवान यह साहस प्रदान करे कि इस विपत दुख को वह झेल सके। हम सभी अपने स्थान पर रहकर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे।